Hello everyone, we'll continue with our lecture on endocrine system. In last two topics, we were done with endocrine glands like hypothalamus, pituitary, pineal gland, then thyroid, parathyroid, thymus and all. Okay, after these all glands, we'll move on towards the rest glands that are left over in our endocrine system. So the first gland that we're going to deal today is pancreas. Okay, when we are talking about pancreas, we have already dealt this pancreas in digestive system. If you remember, pancreas was responsible for releasing pancreatic juice. So we are talking about that specific pancreas itself. Again, individually, pancreas is a 3-marker as well as 5-marker question. Let's have a look around regarding pancreas. It lies behind the stomach. If you remember, in digestive system we talked about, it lies posterior behind the stomach. Now, pancreas is a bit unique in nature. Why is it unique? Because it is a mixed gland. Okay, a typing error, mixed, mixed gland. What does mixed gland mean? It means both exocrine and endocrine in nature. So any gland that is both exocrine and endocrine nature is known as mixed gland. Okay, so what is the function of exocrine part? If you remember, the exocrine glands are responsible for producing enzymes. The exocrine part produces enzymes. Then let's have a look around about enzymes that are produced by pancreas. We are already dealt it in our digestive system, but for a quick recall. So what happens is the exocrine part of pancreas produces pancreatic juice, and that pancreatic juice contains 3 enzymes. Pancreatic amylase. And what is function of amylase? It breaks down polysaccharide, that is carbohydrate or starch, into sugar. So it helps in digestion of carbohydrate. Next, lipase. It is responsible for breaking down fats into fatty acid and glycerol. So lipase is responsible for digestion of fat. Next, protease. As the name suggests, it is responsible for breakdown of protein or polypeptides into dipeptides. So these 3 enzymes are responsible for breakdown of our food products or complex nutrients into simpler nutrients. Okay, so this is the aspect of exocrine part of pancreas. Next, we'll move on towards the endocrine part of pancreas. The endocrine part of pancreas is known as islet of Langerhans. Now, this is important from pre-perspective. So, the endocrine part of pancreas is known as islet of Langerhans. Have a look around in the diagram. This is the pancreas that is just present behind the stomach. And this pancreas, you will find a patch of, you can see over here, dot-like structures. These dot-like structures are small areas of islet of Langerhans, and these islet of Langerhans are your endocrine part of pancreas. And over here you can see these islet of Langerhans have been maximized over here. They have been magnified, and you can see various type of cells that are present in your islet of Langerhans: alpha cell, beta cell and gamma cell. Now in our next slide we are going to deal with these cells, specifically cells of islet of Langerhans. Islet of Langerhans. From exam perspective, this is important for pre 3-marker as well as 5-marker question. Okay, so this islet of Langerhans or endocrine part of pancreas is made up of a group of cells such as alpha, beta and delta cells. So here remember this, islet of Langerhans is made up of 3 types of cells: alpha, beta and delta cell. Now individually we will be dealing with the cells and various hormones that are produced by these cells. So the first cell is alpha cell. When you're talking about alpha cell, it produces the hormone glucagon. So alpha cell is going to produce glucagon. Now what is function of glucagon? It is responsible for conversion of glycogen to glucose. Now what is this glycogen? Now whenever we intake food, जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारी खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब क्या हो जाता है? ग्लूकोज. तो हमारे खाने में से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुंच जाता है? ब्लड में. अब जब ब्लड में ग्लूकोज पहुंच जाता है, हमारी बॉडी के लिए जितनी एनर्जी के लिए जितना ग्लूकोज चाहिए वो वहां पे वहीं के वहीं इस्तेमाल हो जाएगा. लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है.
So glycogen क्या है? It is storage form of glucose. Now what happens is when we are starving या फिर हमारी बॉडी में खाने की मतलब हम खाना वाना नहीं खा रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती, तो उस समय होता ये है, ये जो ग्लाइकोजन हमने स्टोर कर रखा है इसको हम ब्रेक डाउन करके क्या रिलीज करते हैं? ग्लूकोज रिलीज करते हैं। और इस रिलीज में हेल्प कौन करेगा? Glucagon. So what is function of glucagon? It is responsible for converting glycogen into glucose. And what is glycogen? It is the storage form of glucose. ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं अब। बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? इट प्रोड्यूसेस इंसुलिन। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन ग्लूकागोन के जस्ट ऑपोजिट काम करता है। देखते हैं, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। अभी हमने बात करी थी ना, खाना खाने के बाद ग्लूकोज ब्लड में होता है, ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में, और फिर बॉडी में स्टोर होता है। तो ये जो कन्वर्शन है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन वाला जो कन्वर्शन है, इस कन्वर्शन में कौन हेल्प करेगा? इट इज कंडक्टेड बाय इंसुलिन। और जैसे ही ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए, व्हाट वुड हैपन? हमारा जो ब्लड का शुगर लेवल है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देखते हैं, इट हेल्प्स इन सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। इसकी वजह से होता क्या है? जो सेल्स है वो ब्लड में से सारा का सारा ग्लूकोज अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। नेक्स्ट, कन्वर्शन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज टू फैट। साथ ही साथ कुछ एक्सेस ग्लूकोज को ये फैट में भी कन्वर्ट कर देता है। तो इंसुलिन का काम क्या है? ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम कर रहा है, क्योंकि इन सारे ग्लूकोज को वो क्या कर रहा है? बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे स्टोर कर रहा है। ठीक, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन अंडर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन टेक्स प्लेस? वैसे सबको पता है, लेकिन फिर भी अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो फिर हमें कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज मेलिटस, जिसे हम कहते हैं शुगर वाली बीमारी, बस वही। नाउ इसमें होता क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल या फिर ब्लड शुगर लेवल विल राइज। क्यों राइज हो जाएगा? क्योंकि जो ग्लूकोज ब्लड में मौजूद है, इंसुलिन की कमी हो गई तो वो ग्लूकोज अब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बॉडी में स्टोर हो नहीं रहा है, तो इस वजह से ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब है इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल और शुगर लेवल इन ब्लड। नेक्स्ट, उसके अलावा और क्या हो सकता है? ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड इनटू यूरिन। अब यूरिन में, अब ब्लड में अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो फिर यूरिन में भी ग्लूकोज एक्सक्रीट होगा। इसकी वजह से जो कंडीशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोस्यूरिया। So these are certain issues that are associated with under secretion of insulin. तो आप भी देखते हैं, अंडर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन की वजह से क्या होगा डायबिटीज मेलिटस। सिम्टम क्या है? ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा और यूरिन में भी ग्लूकोज फ्लो होने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया एज वेल एज ग्लाइकोसूरिया। ठीक, अब हम आते हैं डेल्टा सेल्स, थर्ड टाइप ऑफ सेल दैट इज प्रेजेंट इन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसका काम क्या है? ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उस हार्मोन का नाम क्या है? सोमैटोस्टैटिन। ओके, it produces the hormone somatostatin that controls or inhibits the action of glucagon and insulin. ये इंसुलिन एंड ग्लूकागोन की ओवर रिएक्टिवनेस या फिर ओवर एक्शन को कंट्रोल करके रखता है। बॉडी में अगर किसी वजह से ग्लूकागोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है या फिर इंसुलिन अगर ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो फिर सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस होती है और क्या करता है? रोक देता है। जितना जरूरत है बस उतना ही इंसुलिन और ग्लूकागोन काम कर पाएंगे। इसकी वजह से होता क्या है? सोमैटोस्टैटिन एक मॉनिटर की तरह काम करता है, इनहिबिटर की तरह काम करता है और इंसुलिन और ग्लूकागोन के फंक्शंस को कंट्रोल करके रखता है। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोमैटोस्टैटिन। ओके, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को हम 3, प्री और 5 मार्कर के हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या है? एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ठीक ऊपर मौजूद रहते हैं। ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे डायग्राम में, ये है किडनी और किडनी के ऊपर ये क्राउन के फॉर्म में जो आपको पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। साइड में यहाँ पे आपका इसको मैग्निफिकेशन वाला भी दिख जाएगा। नाउ दिस क्राउन लाइक ट्रायंगल शेप्ड या फिर पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर इज योर एड्रिनल ग्लैंड। ओके, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये डिफरेंशिएट या फिर डिवाइड हो जाती है दो कैटेगरीज में, दो पार्ट्स में, एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, ये जो कोर एरिया है, ये जो अंदर का जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला, ये जो पिंक वाला पार्ट, और इसके चारों तरफ जो येलोइश गोल्डन कलर में जो एरिया है, इसे हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, बाहर वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और जो इंटीरियर वाला पार्ट है एड्रिनल मेडुला। एंड ये दोनों पार्ट्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स एज वेल एज एड्रिनल मेडुला, दोनों पार्ट हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। एक एक करके डील करेंगे। सो फर्स्ट वन इज
एड्रिनल मेडुला। कहाँ पाया जाएगा? ये एड्रिनल ग्लैंड के इंटीरियर में पाया जाता है। नाउ दिस एड्रिनल मेडुला प्रोड्यूसेस टू हार्मोन्स, फर्स्ट वन इज एड्रेनलिन एंड द अदर वन इज नॉरएड्रेनालिन। बाय द वे ये दोनों हार्मोन क्या है? सिस्टर हार्मोन है। दैट मीन्स दोनों का फंक्शन लगभग एक जैसे हैं, इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं सिस्टर हार्मोन, एक ही करके डील करते हैं। सो जो पहला हार्मोन है उसका नाम है एड्रेनालिन। बाय द वे एड्रेनालिन का एक और अल्टरनेट नेम है, इसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। तो ये हमारे लिए प्री क्वेश्चन बन गया। एड्रेनालिन इज आल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन। ओके, इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फ्राइट, फाइट और फ्लाइट। डर की वजह से ये प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हम उस डर से लड़ भी सकते हैं और वहां से भाग भी सकते हैं। फ्राइट, फाइट और फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब भागना। तो इस वजह से एड्रेनालिन को कुछ लोग फाइट, फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन भी कहते हैं एंड हैज मेनी इफेक्ट्स। ठीक, देखते हैं इसके इफेक्ट्स के बारे में, लेकिन फिर भी वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एड्रेनालिन का अल्टरनेट नेम क्या है? इसे हम एपिनेफ्रिन कहते हैं। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारी बॉडी को फाइट, फ्लाइट और फ्राइट के लिए प्रिपेयर करती है। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? फ्राइट, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। ठीक, इसका एक और भी नाम है, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कभी कभार कहा जाता है, क्योंकि जब हमारी लाइफ पे थ्रेट आ जाती है, इमरजेंसी होती है, तब ये ज्यादातर प्रोड्यूस होती है। ओके, इसके फंक्शंस को देखते हैं। इसकी वजह से होगा क्या? एक्शन ऑफ हार्ट विल इंक्रीज। अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है तो फिर ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विल इंक्रीज। O2, CO2 इसका एक्सचेंज बढ़ जाएगा, मतलब रेस्पिरेशन रेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। सर्कुलेशन रेट बढ़ गया है, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ गया है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक रेट विल इंक्रीज। अब जब सर्कुलेशन और हमारी रेस्पिरेशन रेट बढ़ गई तो बाकी लाइफ प्रोसेस भी तेज हो जाएंगे, एनहांस हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में बहुत सारी एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी के साथ हम क्या कर सकते हैं? किसी भी डेंजरस सिचुएशन, फ्राइटफुल सिचुएशन से हम वहां पे लड़ भी सकते हैं या फिर वहां से अपनी जान बचा के भाग भी सकते हैं। इसी वजह से इस हार्मोन को हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। हार्मोन का नाम क्या है? एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन। ठीक, नेक्स्ट हार्मोन इज नॉरएड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक, नाउ ये सिस्टर हार्मोन होने की वजह से, एड्रेनालिन का सिस्टर हार्मोन होने की वजह से ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन, एक जैसे ही फंक्शन है, सिमिलर इफेक्ट्स टू एड्रेनालिन। देख लेते हैं। इट विल हेल्प इन कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स लीडिंग टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। जो हमारे कैपिलरीज हैं उनको और ज्यादा नैरो कर देगा। अब कैपिलरीज की साइज वैसे ही बहुत नैरो थी, अगर इनका साइज और ज्यादा नैरो हो जाता तो होगा क्या? ब्लड फ्लो तेज हो जाती है। ब्लड फ्लो तेज होने से फायदा क्या है? ब्लड तेजी से बॉडी में सप्लाई करी जाएगी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह तेजी से ट्रैवल कर पाएंगे, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन रेट वगैरह भी क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। ऑलमोस्ट सिमिलर टू एड्रेनालिन। नेक्स्ट, इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। वही रेस्पिरेशन रेट क्या हो रहा है? यहाँ पे बढ़ रहा है। दैट मीन्स हमारी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये डिट्टो एड्रेनालिन जैसा ही काम कर रहा है, इसी वजह से हमने इसे कहा था नॉर एड्रेनालिन। अगेन ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, नॉर एड्रेनालिन। इसका ऑल्टरनेट नेम क्या है? नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक, नेक्स्ट एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये एड्रेनल ग्लैंड का आउटर पार्ट है जिसे हम कहते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगेन कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक सिंगल हार्मोन नहीं है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, जिसको हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इसके अलावा भी बहुत सारे माइनर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मौजूद है। यहाँ पे हमने दो मेजर की बात करी है। बाय द वे आपको अगर याद हो, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है खुद ब खुद अपने हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से स्टिमुलेट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रही थी, ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। वहां से वो हार्मोन रिलीज होगा, तब जाके एड्रेनल कॉर्टेक्स अपने फंक्शन कर सकती है। ठीक, दैट मीन्स अपने हार्मोन प्रोड्यूस कर सकती है। अब एक एक करके देखते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एज द नेम सजेस्ट, इसका काम क्या है? ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में, यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। देखते हैं इसका एग्जांपल्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एग्जांपल्स, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में। यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन बाय द बॉडी। ये हमारी बॉडी में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह की यूटिलिटी को बढ़ाता है ताकि हम आसानी से इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकें।
ओके अगर ये ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो इसकी वजह से कौन सी कंडीशन होती है, कॉर्टिसोल अगर ज्यादा प्रोड्यूस होती है इसकी वजह से जो डिजीज होती है उस डिजीज का नाम है कशिंग सिंड्रोम। ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ओवर सिक्रेशन या फिर हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल कॉजेस कशिंग्स सिंड्रोम, तो ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एज द नेम सजेस्ट मिनरलोकॉर्टिकॉइड का काम क्या हुआ, ये हमारी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स वगैरह मौजूद है उन मिनरल्स को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। इसका एक एग्जांपल आपको दिख जाएगा, एल्डोस्टेरॉन। ठीक, देखते हैं इसके बारे में। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। हमारी बॉडी में जो सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, जो वाटर है उसको बैलेंस करने में ये हेल्प करता है। हाइपर सिक्रेशन अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो गया एल्डोस्टेरॉन, इट विल डिक्रीज द पोटेशियम इन द बॉडी। हमारी बॉडी में पोटेशियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या दिक्कत आ सकती है, इट विल अफेक्ट नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। सोडियम और पोटेशियम हमारी बॉडी में नर्व के सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। लेकिन सोडियम का लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है, पोटेशियम का लेवल यहाँ पे कम हो गया है। इसकी वजह से क्या दिक्कत आएगी, इसकी वजह से इम्पल्स ट्रांसमिशन में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से मस्कुलर पैरालिसिस वगैरह भी हो सकता है, हाथ पैर चलने मूव करने बंद भी कर सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। आपने कई बार देखा हो ओल्ड एज में क्या होता है, कभी कभार लोगों के हाथ की उंगलियां कट जाती है, तो जब डॉक्टर को दिखाते हो तो डॉक्टर एक ही चीज कहता है, वो नमक का घोल पिलाइएगा। रीजन यही है, कई बार होता है ये कि ब्लड में अगर सॉल्ट लेवल, मिनरल लेवल गिर जाता है तो इसकी वजह से टेम्पररी पैरालिसिस वगैरह भी हो सकता है। ठीक, एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कैन बी अ रीजन फॉर इट। तो विद दिस वी आर डन विद एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसके दो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। साथ ही साथ इसके सब एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। ये सब एग्जांपल्स हम याद रखेंगे फ्रॉम ट्री पर्सपेक्टिव। साथ ही साथ जो डिजीजेस यहाँ पे एसोसिएटेड वो भी हम याद रखेंगे, जैसे कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल कॉजेस कशिंग सिंड्रोम, वहीं पे हाइपर सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन कैन कॉज मस्कुलर पैरालिसिस। नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है ओवरीज। ओके, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, गोनाड है, एंड ओवरी की अगर हम बात करें ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक, फीमेल में पाया जाएगा। जब हम ओवरी की बात करते हैं, ओवरी प्रोड्यूसेस टू हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवरी हमेशा पेयर में मौजूद रहती है फीमेल बॉडी में और दो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एक है एस्ट्रोजन, दूसरी है प्रोजेस्टेरोन। एक एक करके डील करेंगे। एस्ट्रोजन, यहाँ पे दो स्पेलिंग आपको दिख जाएगी, दोनों सही है। OESTROGEN जो है ये ओल्ड इंग्लिश है, यूके इंग्लिश है, और ESTROGEN जो है ये यूएस इंग्लिश है या फिर न्यू इंग्लिश है, दोनों सही है। ओके, इसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ यूट्राइन वॉल। जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो होता ही है, आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, फीमेल बॉडी में हर महीने जो यूट्रस वॉल है वो प्रिपेयर होती है फॉर इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर ये सारी की सारी जो प्रिपरेशन है वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, यूट्राइन वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और मेंस्ट्रुएशन के सारे फीमेल बॉडी से एक्सपेल कर दिया। और इस प्रोसेस में हेल्प कौन कर रहा है, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का काम क्या है, अगर प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती है तो यूट्रस को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। तो इसी से फंक्शन लिखा गया है, इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ यूट्राइन वॉल या फिर मेंस्ट्रुएशन में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अप ऑफ एंड मेंटेनिंग द यूट्रस वॉल फॉर एम्बेडिंग ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मान लेते हैं अगर प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तब होगा क्या, प्रोजेस्टेरोन की जिम्मेदारी है ये यूट्रस को बिल्डअप करेगा और उसको मेंटेन करेगा ताकि जाइगोट यहाँ पे अटैच हो सके, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके। इसके अलावा इसके और भी कुछ भी फंक्शंस हैं, जैसे कि इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जांपल बॉडी हेयर, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एंड चेंजेस इन फिजिकल बॉडी। फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स हैं उनको भी ये एनहांस करने में हेल्प करता है। ओके, ओवरी को हम प्री के लिए मार्क करेंगे, प्लस यहाँ पे जो हार्मोन्स यूज करेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये प्री और 3 मार्कर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, टेस्टिस। टेस्टिस की अगर हम बात करें, अगेन इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक, इट इज ओनली फाउंड इन मेल्स और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। देखते हैं इसके बारे में। इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे बस एक ही हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन या फिर मेल सेक्स हार्मोन।
It is responsible for development and functioning of male sex organs. मेल सेक्स ऑर्गन या फिर जो पेनिस है उसके डेवलपमेंट मैच्योरिटी में हेल्प करता है ताकि आगे चल के यहाँ पे गैमीट वगैरह भी सही तरीके से फॉर्म कर सके. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ये मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी डेवलप होने में हेल्प करता है, जैसे कि अपीयरेंस ऑफ बॉडी हेयर, मोस्टैच वगैरह हो गए, फेशियल हेयर वगैरह हो गए, मस्कुलर डेवलपमेंट, मसल डेवलपमेंट प्लस वॉइस चेंज. आपने एक चीज नोटिस की, लड़कों में बॉयज में ज्यादातर 12-13 साल की उम्र में उनकी वॉइस वगैरह चेंज होने लगती है. रीजन इज उस समय प्यूबर्टी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से टेस्टिस एक्टिवेट होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज होता है. इसी की वजह से वॉइस चेंज वगैरह होनी शुरू हो जाती है. ठीक. सो अगेन टेस्टिस इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्री पर्सपेक्टिव. टेस्टोस्टेरोन कैन बी अ 3 मार्कर क्वेश्चन. With this, we are done with our endocrine system.